Hello aspirants, in this video I am going to discuss about GS paper 2 syllabus for mains and इस वीडियो में important topics of syllabus and we will briefly understand the syllabus. Then I would discuss the sources to study mains paper 2 and our entire motive of this video is how to score 120 plus marks in GS paper 2 in mains. See, first thing एक misconception है with respect to GS paper 2. See, everyone says that GS paper 2 is polity paper, but वो myth है because only 50% of GS paper 2 is polity. Rest 50% is governance and social justice and international relations. अब आपको धीरे इस वीडियो देखने के बाद पता चलेगा वाई ये मिथ है. सी फर्स्ट थिंग इज एस पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस सब्जेक्ट. ठीक है, दिस पेपर में सी पॉलिटी इज व्हाट. सी दिस इज broadly you can understand it as Lakshmikant. लक्ष्मीकांत ही है. सो बट एंटायर पॉलिटी नहीं है, सिर्फ इधर तक है. दिस इज पॉलिटी. ठीक है, एंड लक्ष्मीकांत कवर्स ओनली टिल दिस मच, दैट इज जस्ट 50% ऑफ द पेपर. बाकी जब है ना लक्ष्मीकांत कवर नहीं करता, सो इट इज नॉट पॉलिटी. सो पहले पॉलिटी का डिस्कस करते हैं. देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, all the chapters are given in Lakshmikant. So see, many people are saying Lakshmikant is not sufficient for polity. समझ लिया, लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशिएंट फॉर पेपर 2, बट ये सारे टॉपिक्स है लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट फॉर दीज टॉपिक्स. ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स के लिए देयर इज नो नीड टू रीड एनी अदर बुक लाइक डी बसु एक्सेट्रा. लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट. देन आता है फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन, स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस टू फेडरल स्ट्रक्चर. Again, federal structure is very important from mains perspective also. Then devolution of finances and local levels. This chapter is very important. Local level में powers and finances. This is like article 73 and 74, right? So this topic is very important topic in mains. Like federalism भी important है. This topic is very important. So I highlight federalism also, federal structure wala. So whenever you are focusing on mains, you need to focus on these topics. Then separation of powers, again very important. ठीक है, and related to institutions, dispute redressal mechanism. Then comparison of Indian constitutional scheme with respect to other countries. Other countries क्या है? US, UK, जापान, फ्रांस. ठीक है, इन सब का इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू मेक नोट्स, क्योंकि ये अच्छे से बुक में कवर नहीं किया है लाइक इन लक्ष्मीकांत और डी बसु एक्सेट्रा. सो ट्राई टू मेक नोट्स ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, हैव लाइक 5-6 पेजेस का नोट्स. कहां से बनाना है आई विल टेल यू when I discuss about the sources. Then आता है parliament and state legislature and functioning etc. was Lakshmikant material is sufficient. Then structure and organization of executive and judiciary, ठीक है, important है. Then ministries, department and government. Then आता है pressure groups and formal and informal associations and their role in polity. See, pressure groups में UPSC is continuously asking question, so it is very important topic. Then
सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, देखो सिलेबस में एक लाइन सीधा मेंशन किया है, एंड यूपीएससी इज ऑल्टरनेटिव ईयर्स में इट इज आस्किंग ए क्वेश्चन, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Then appointment of various constitutional posts, powers, responsibilities of various constitutional bodies. See here again it is important. See constitutional bodies क्या होगा? Finance Commission, UPSC, Election Commission. So all these constitutional bodies related issues you need to know. Like here, like whenever these constitutional bodies are in news you need to focus on those. फिर आता है statutory, regulatory and various quasi judicial bodies. Statutory भी, regulatory, see here क्या क्या आता है? NHRC, NHRC statutory body, right? फिर many like all the statutory bodies जो भी न्यूज में है, all these things come under quasi judicial bodies. So you need to focus on all these issues. ठीक है, जो हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ट्राई टू मेक नोट्स ऑन देम, जितना हो सकता है नोट्स बना लो. सो अभी देखो इस टॉपिक से जो भी डिस्कस किया, जो पॉलिटी है उनसे कितने क्वेश्चन आता है. सी फॉर पॉलिटी दिस वन सेक्शन 1 ये जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन आता है यूपीएससी आस्क फॉर 125 मार्क्स. यस, सिर्फ इस पार्ट से 125 मार्क्स आता है, दैट इज लाइक लक्ष्मीकांत वाला पॉलिटी समझ लो. एंड 125 मार्क्स में 5 क्वेश्चंस आर 10 मार्क क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस आर 15 मार्क क्वेश्चंस आता है. सो टोटल बन गया 125. सो मार्क इलोकेशन फॉर पॉलिटी इज 125. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. सो देन वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट. चलो फर्स्ट पार्ट का सोर्सेस भी डिस्कस करते हैं एक ही टाइम में. सी फर्स्ट पार्ट का सोर्सेस इज व्हाट? सोर्सेस है पॉलिटी का, वन इज लक्ष्मीकांत. आई हैव टोल्ड जो भी टॉपिक्स लक्ष्मीकांत में कवर किया है, लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट, नो नीड टू रीड एनी अदर बुक. देन आता है मेंस 365. सी इफ यू आर गिविंग मेंस इन 2023 और एम है कि 2023 अटेम्प्ट का, देन यू नीड टू रीड मेंस 365 ऑफ विजन आईएएस जो मेंस से पहले रिलीज होता है, और विजन आईएएस करंट अफेयर्स मैगजीन्स like you must be reading for prelims also. Those things you can carry on for mains also. So mains 365 और current affairs magazines. ठीक है, ये हो गया पार्ट 1 का sources. See few topics like representation of people act वगैरह you can refer शून्य IAS का बुक आता है जीएस पेपर 2 का. So for that topic you can refer. So other than that no need to refer that any book for this topic. ठीक है, then चलते हैं पार्ट 2 में. पार्ट 2 is government and policies and intervention. See this is social justice and governance. Social justice क्या है? Social justice is related to like addresses of women issues or disabled people issues or scheduled caste, scheduled tribes issues related to poorest sections of the society. ठीक है, basically issues related to addressing poverty, inequality, social injustice etc. तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस विथ रेस्पेक्ट टू वेरियस सेक्टर्स. ठीक है, इस पे फोकस करना है. देन आता है हाउ गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग लाइक स्कीम्स एक्सेट्रा. देन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री. अब इसमें एनजीओस
very important. Then self help groups, again very important topic. So self help groups, then various groups वगैरह. self help groups NGOs में have your own notes. ठीक है. देन आता है वेलफेयर स्कीम्स. फॉर वेलफेयर स्कीम्स जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाइक नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो भी एक्ट्स है, स्कीम्स है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट रिलेटेड टू वर्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. वर्नरेबल कौन है? पूरेस्ट ऑफ पोर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है. देन डिसेबल्ड सेक्शंस, देन वुमेन, ये सब वर्नरेबल सेक्शंस है, तो इन पे लिए करना है. देन देखो स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉस लाइक एक्ट्स, institutions related to them and bodies constituted etc. So anything related to vulnerable section, जो acts है, laws है, institutions है, they are important. ठीक है. then आता है issues related to development and management of services like health, education and human resources. here आता है skill development etc. तो these things are covered in prelims. general topics होगा थोड़ा, like if there are specific current affairs में कुछ है तो फोकस करो. so इधर current affairs पे फोकस करो. ठीक है. then issues related to poverty and hunger. ठीक है. and schemes related to poverty hunger, this section is covered in economics. so ये economics GS पेपर 3 में कवर हो जाएगा. then आता है this topic is very important, governance. लाइक सीधा इधर से 3 क्वेश्चंस आ जाएगा यूपीएससी में, लाइक 40 मार्क्स तक का. सो एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू गवर्नेंस. गवर्नेंस में क्या है? व्हाट इज गुड गवर्नेंस, व्हाट इज एथिकल गवर्नेंस एक्सेट्रा. देन ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस, पोटेंशियल. सो इन सब का नोट्स होना चाहिए. देन सिटीजन चार्टर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस. सो जो भी हाईलाइट किया हूं वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उन पे आपका पहला फोकस होना चाहिए, लाइक ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर. देन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, हैव 2 to 3 पेजेस का नोट्स, 3 to 4 पेजेस का नोट्स ऑन दिस टॉपिक. दैट्स इट. कहीं से भी बना लो. ठीक है. ये अब हो गया सेकंड पार्ट, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस. इसका मार्क्स देखते हैं कितने नंबर का यूपीएससी पूछती है. चलो सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस पार्ट, राइट. सो इसका क्वेश्चन आता है यूपीएससी आस लाइक पास्ट 3 years में from social justice UPSC has asked for 75 marks. 75 marks इन टॉपिक से पूछा है. सो डोंट थिंक कि पॉलिटी से ही आएगा, इससे ही आएगा. सी पॉलिटी इज 125 मार्क्स, बट सोशल जस्टिस में भी तो 75 मार्क्स का आ रहा है. सो एंड आउट ऑफ दिस 75 मार्क्स 3 क्वेश्चंस है 10 मार्कर्स एंड 3 क्वेश्चंस है 15 मार्कर क्वेश्चंस. सो टोटल 6 क्वेश्चंस आता है एंड 75 मार्क्स का आता है इस टॉपिक से. सो लाइक इफ यू नीड टू फोकस ऑन दिस. सो इस टॉपिक के लिए क्या करना है? So you need to make your own notes for this topic, because there is no single source to cover all these topics, because the dynamic nature of topics like self-help groups, NGOs, schemes with respect to vulnerable sections बहुत डायनेमिक है, ये एक जगह कवर नहीं है. So what you need to do is जो शून्य आईएएस का जीएस पेपर 2 का बुक है होता है, एक जीएस पेपर 2 मेंस का बुक होता है, वो यूज करना है फॉर दिस टॉपिक. एंड विजन आईएएस मेंस 365 पास 3 इयर्स का, उससे ये दोनों सोर्सेस यूज करके नोट्स बनाना है. सी नोट्स लाइक विजन आईएएस, व्हाई आई एम टेलिंग यू कि सेलेक्टिव रीडिंग क्यों करना है. लाइक हो सकता है कि 2020 का विजन आईएएस में
सिटीजन चार्टर कवर किया हो, सिटीजन चार्टर, एंड बाकी कवर नहीं किया, बिकॉज मेंस 365 में दे कवर करंट अफेयर्स, राइट। एंड हो सकता है कि 2021 में दे माइट हैव कवर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। एंड हो सकता है कि 2022 में they might have covered about NGOs extensively. So whatever topics are extensively covered in particular mains 365, उधर से make notes of 3 to 4 pages per every topic. जैसे self help groups है, like self help groups का try to break down into 4 or 5 topics, like what are self help groups, how they are working, like important areas they are working, how they are effective in South India, how they are not effective in North India, what are the challenges with respect to self help groups, what steps government is taking, what steps further needed, इन सब पे like have 200 words का आंसर ऑन एवरी इश्यू। वो 3-4 पेजेस का सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, एंड यू नीड टू रिवाइज दैट रेगुलरली, इवन बिफोर एग्जाम ऑल्सो, मेन्स एग्जाम ऑल्सो यू कैन रिवाइज दैट। सो पूरा इस पार्ट का फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स ट्राई टू हैव 50 पेजेस का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, 50 पेजेस का नोट्स बनाना है यूजिंग दीज 2 सोर्सेस, ठीक है। अब बस इतना ही करना है, ठीक है। वो हो गया पार्ट 2 का। देन आता है पार्ट 3। सी पार्ट 3 इज व्हाट? IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। सी इंटरनेशनल रिलेशंस इज बेसिकली इंडिया एंड इट्स नेबरहुड पे फोकस करना है। देन इंपॉर्टेंट थिंग इज बाइलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स। groupings are what? Bilateral, regional and global, and agreements, India and affecting India's interest. See examples क्या हो सकता है, देखो इधर हो सकता है कि भाई बिम्स्टेक एंड सार्क, एंड हो सकता है IMF या वर्ल्ड बैंक and WTO, all these things, these are international groupings and agreements like UNESCO and in fact World Health Organization, all these things. So you must have knowledge on all the regional and bilateral groupings and agreements like climate change agreement, Paris agreement, ठीक है, एंड एनी लाइक G20 में कुछ अग्रीमेंट साइन हुआ, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो, लाइक FATF का अग्रीमेंट कुछ हुआ, लाइक NSG में कुछ हुआ, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग। देन आता है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन इंडियाज इंटरेस्ट। दिस इज लाइक जनरल टॉपिक, ठीक है, जनरल टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा, वेन एवर यू आर रीडिंग इंडियन डायस्पोरा यू नीड टू रीड इट रीजन वाइज, लाइक ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया का डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, लाइक ईस्ट एशिया इज व्हाट? आसियान कंट्रीज वगैरह में। देन सेंट्रल एशिया, देन आता है भाई वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया इज लाइक कतर वगैरह में इंडिया हैज ह्यूज डायस्पोरा। देन USA एंड इंडियन डायस्पोरा, लाइक यूरोप एंड इंडियन डायस्पोरा, सो रीजन वाइज, ठीक है। देन लाइक रीजनल डोमेस्टिक इश्यूज, डायस्पोरा with respect to Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, etc. So region wise have notes on every region, like each region का 2 pages का notes would help you a lot, ठीक है। Then आता है important international institutions, agencies, fora and their structure।
ठीक है, दीज लाइक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स, एजेंसीज, यूनेस्को, WHO, WTO, ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये है IR का। अब देखते हैं IR से कितने क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का वेटेज है। सी IR का वेटेज इज 50 मार्क्स। सो 50 मार्क्स का वेटेज है। सो एवरी ईयर 2 क्वेश्चंस आता है 10 मार्क्स का, 10 मार्कर वाला 2 क्वेश्चन आता है, देन 2 क्वेश्चन आता है 15 मार्कर का। सो दैट इज टोटल 4 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। सो यू कैनॉट टेक दिस लाइटली। सो इस पेपर के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज मेंस 365 पढ़ना है ऑफ IR, विजन IAS का मेंस 365 ऑफ पास्ट 3 इयर्स का पढ़ना है। सी इफ यू आर गिविंग 2023 अटेम्प्ट, सो 2023 का मेंस 365 इट विल बी आउट बिफोर 2023, और लाइक करंट अफेयर्स मैगजीन्स। सो 2023 का either मेंस 365 और करंट अफेयर्स मैगजीन्स IR सेक्शन, ठीक है, ये है। देन 2022 का भी करना है, 2021 का भी करना है, बट यू नीड टू बी सेलेक्टिव। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ही करना है, बिकॉज टू अंडरस्टैंड, हो सकता है कि भाई एक साल में कवर नहीं किया हो, लाइक हो सकता है कि इन 2021 मेंस 365 हैव कवर्ड इंडिया एंड US रिलेशंस बेटर, एंड हो सकता है 2022 में इंडियन डायस्पोरा का टॉपिक है अच्छा से कवर किया हो। सो यू कैन रीड देम, इफ यू वांट यू कैन मेक नोट्स, एंड देन आता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिकरिंग टॉपिक्स, उनका नोट्स बनाओ। एंड हार्डली दिस टॉपिक में नोट्स होना चाहिए 20 पेजेस का, 20 पेजेस का नोट्स वुड बी सफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिकरिंग थीम्स है, लाइक इंडियन डायस्पोरा का यू कैन मेक नोट्स। सो दिस इज फॉर IR, नो नीड टू रीड एनी बुक। सी IR के लिए यू रीड करंट अफेयर्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो उधर से मैक्सिमम ऑफ IR वुड बी कवर्ड। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन कवर इट फ्रॉम पास्ट मेंस 365 से। सो ये है पूरा। अब देखो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, एक कंक्लूडिंग रिमार्क है, दैट इज मेंस का GS पेपर 2 इज नॉट अबाउट पॉलिटी, पॉलिटी इज जस्ट 50%, देन देर इज अनदर टॉपिक्स लाइक सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सो 3 पार्ट्स है, डोंट जस्ट फोकस ऑन 1 पार्ट, second and third parts are as important as first part, ठीक है। That's it for today's video, and I have made similar video on GS paper 1 main syllabus analysis, how you need to prepare GS paper 1 mains। so वो वीडियो भी देख सकते हो आप। तो if you like the video, please share it with your friends who are preparing for UPSC. That's it.